Yes, sir. Okay, so what I talked about is that first I talked about central forces. So central forces are forces that act between two So particles. screen screen share, sir. Sir, Screen, your screen share. screen is not shared. Sir, Screen share. yeah. Yes, yes, I'm sharing. Yeah, now it's shared. No? So I talked about central Yes, forces. sir. So central forces are those forces that act between two particles along a straight line joining the centers between those two particles. And it is a mathematical function of the instantaneous distance between those two particles. If the magnitude of the force is positive, it's repulsive because it's directed towards positive r or increasing r. And if the magnitude of the force is negative, it's attractive. That means it is acting towards decreasing r. Now I talked about various properties of central forces. So you have gravitational force, electrostatic force, and spring mass system are examples of central forces. So whatever property I discuss for central forces can automatically be applied for these specific forces. Okay. So first property of central forces is that central forces are conservative. Now, this is something that I've proved earlier also. So you can check that proof. The second property I'm discussing by taking the torque. Okay. So if I take the torque because of a central force, then it turns out that the torque is simply a cross product of between r cap and r cap, which comes out to be 0, which simply means that dl upon dt is equal to 0. That means L is equal to a constant. Now you know that angular momentum is basically a vector quantity. So when a vector quantity is a constant, then we'll have to talk about not only its magnitude but also its direction. So this is something that is known as, this is the angular momentum, which is constant. So the first quantity is that the magnitude of the angular momentum is conserved. Okay. So the first property of central forces, as well as all other forces that are central forces like gravitational force, is that the magnitude of central forces are constant. So as the particle is moving, or as the particle is undergoing some kind of a change during its trajectory, the magnitude of angular momentum for central forces, the magnitude of angular momentum, of for particles undergoing motion due to central forces is a constant. So this is one very important property, okay, that we will come back to over and over again. Now इसका जो ये जो एक्सप्रेशन है, इसका सिग्निफिकेंस है दैट L इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, पर इसका एक और सिग्निफिकेंस है दैट L का जो डायरेक्शन है, मतलब L वेक्टर डिवाइडेड बाय L मैग्नीट्यूड is also a constant. Now the direction of L being constant means that whatever the motion that is happening between these two particles, its angular momentum of the system will always lie on a particular direction. That means the objects will always experience trajectories in a plane perpendicular to it, which is fixed in space. तो कोई भी अगर आपका दो ऑब्जेक्ट है that is experiencing some kind of a motion, let's suppose कोई एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, और उनके बीच की फोर्स की वजह से वो जो भी मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये पार्टिकल लेट्स सपोज ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल लेट्स सपोज ये से मूव कर रहा है, तो उनका जो मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का, वो एंगुलर मोमेंटम जो है इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन इन स्पेस. ठीक है, एल का डायरेक्शन हमेशा यही होगा. तो द कॉन्सिक्वेंस इज दैट, द वेरी सिंपल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट मोशन इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन. मोशन इज ऑलवेज restricted to a plane. Okay, so this is the very important property, that whenever forces are particles are experiencing some kind of a motion due to central forces, then motion, angular momentum का direction constant है, इसलिए motion is always restricted to a प्लेन. इसलिए जब आप लेट्स सपोज सोलर सिस्टम की मोशन को स्टडी करते हैं, ये सन है, ठीक है, और लेट्स सपोज जो अर्थ है वो ऐसे मूव कर रही है, सन कह रहा हूँ, ये अर्थ है, तो हम हमेशा ऑर्बिट को ऐसे ही बनाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन.
हम ऐसा नहीं बनाते कि अर्थ ऐसा है फिर ऐसे चला गया फिर ऐसे चला गया, फिर 3D में नहीं मूव करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अर्थ इज नॉट गोइंग अराउंड द Yes. सन इन 3D. It is always restricted to a particular plane. Are you understanding? There is a particular plane on which this motion is happening. It's not happening in 3D. There is a particular plane in which that motion is going to happen, on which the earth and system lies. Earth and sun and the earth system lies. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है? सारे प्लैनेट्स ऐसे ही नहीं, सारे प्लैनेट्स का अपना अपना प्लेन है. ज़रूरी नहीं है कि एक प्लैनेट का प्लेन और दूसरे प्लैनेट का प्लेन सेम हो. तो फॉर एग्जांपल नेपट्यून के लिए कोई अलग प्लेन हो सकता है, लेकिन वो उसका प्लेन फिक्स्ड है उसके लिए. तो नेपट्यून और लेट्स मतलब- सपोज सन सिस्टम का जो प्लेन है वो फिक्स्ड है स्पेस में, लेकिन नेपट्यून सन सिस्टम और अर्थ सन सिस्टम का प्लेन ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. ठीक है, इसका मतलब यही है वो हमेशा प्लेन में ही मूव करेगा. हमेशा, मतलब हम GTR को Plane अगर में ही इग्नोर move करें, हाँ अगर हम GTR को इग्नोर करें तो जो अर्थ सन सिस्टम है उसमें जो है आपका अर्थ जो है जो भी ट्रैजेक्टरी एग्जीक्यूट करेगा वो हमेशा एक प्लेन में ही फिक्स्ड होगा. अंडरस्टैंडिंग? यस Yes, sir. अगर आप किसी भी लेट्स सपोज किसी भी सेंट्रल फोर्सेस के बारे में बात सर करें, फुल फॉर्म ऑफ जीटीआर. सर फुल फॉर्म जीटीआर. GTR इज जनरल रिलेटिविटी. जनरल रिलेटिविटी में थोड़ा सा कुछ पेरिलियन वगैरह है वो आ जाता है, सॉरी कुछ डेविएशंस आ जाते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूटन इन मैकेनिक्स. जनरल रिलेटिविटी आपने सुना होगा ना? यस यस सर. जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी का जो है डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा अलग है. ठीक है, मैं नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ग्रेविटी एज अ फोर्स इज सिंपली अ सेंट्रल फोर्स एंड देयर फॉर वट एवर प्रॉपर्टी ऑफ अ सेंट्रल फोर्स इज देयर इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर planetary motion. That means earth is restricted in its motion around the sun on a particular plane. So this is very very important, that whatever be the nature of motion due to the central forces is always restricted to a plane. ठीक है? So these are two properties. What was the third property? Was there any other specific property that I did not discuss? हाँ, तो यही है. दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, सेंट्रल फोर्सेस इज कंजर्व्ड. I don't remember right now. There is another property for aerial velocity, but मैं उस पर थोड़ी देर बाद में आता हूँ, या अभी कर लूँ aerial velocity. ओके ठीक है, अभी कर लेते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज़ अ कांस्टेंट, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम दैट वी कैन फाइंड आउट बाय should I use reduced mass or नहीं, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ. ठीक है, so let us before I do the actual centralmost problem. So the third property is that the aerial velocity, that means whenever objects are undergoing some kind of a motion due to central forces, then the radius vector, मतलब ये जो line है yellow line, it traces out some kind of an area in space with respect to time. Then what the amount of area traced out by this vector in a given amount of time is constant. That's known as aerial velocity. Now इसका एक consequence Kepler's laws में भी है, but we will not go there at this moment. This is actually a property of central forces. So for that, I'll have to actually calculate the magnitude of angular momentum. So what is the magnitude of angular momentum? L is nothing but equal to R cross P. Now P क्या है? P is nothing but for the time being I am saying mv. Okay, mv is nothing but, this is because m r dot. Okay, v is nothing but dr upon dt. अब मुझे एक बात बताइए, ये जो मोशन हो रहा है, ये जो पार्टिकल है, ये लेट्स सपोज ये r है. ठीक है, दिस इज द r वेक्टर. नाउ r वेक्टर इज अंडरगोइंग चेंज. तो r वेक्टर की अंडरगोइंग चेंज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ r वेक्टर का जो है डिस्टेंस ही, मतलब मैग्नीट्यूड ही चेंज हो. ये जो r वेक्टर प्लेन में भी रोटेट कर सकती है ना. इट कैन रोटेट इन अ प्लेन.
ठीक है. द वेक्टर कैन रोटेट ऑन द प्लेन बिकॉज मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्लेन. तो अभी अगर मासेज यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद मासेज अगर यहाँ पे पहुँच जाए और दूसरा मास यहाँ पे पहुँच जाए तो नया आर वेक्टर ये होगा नया आर. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट मीन्स नॉट ओनली द आर मैग्नीट्यूड कैन चेंज, इट कैन ऑल्सो रोटेट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन. देयरफॉर ये जो क्वांटिटी है r dot, which basically signifies the velocity of the particle, can be written in terms of polar coordinates. You understand polar coordinates, right? Yes, sir. Polar coordinates में Yes. हम magnitude of this r vector and direction of the r vector के terms पे लिख सकते हैं. तो कोई भी अगर आपका r vector होता है, कोई भी r vector होता है, एक fixed direction के terms पे हम लिख सकते हैं theta and r. So small r here represents the magnitude of the r vector, okay, and theta simply represents the direction of the r vector with respect to some fixed reference axis, with respect to fixed reference axis. तो ऐसे सिचुएशन में अगर क्योंकि प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है इसलिए मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ. अगर प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है तो r वेक्टर का जो टाइम डिराइवेटिव है इट इज़ नथिंग बट r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप. Plus r theta dot theta cap. This is you are fine with this? You know this, right? Yes, sir. You know this, right? Yes, okay. sir. Okay. So that means the velocity of any given particle which is restricted to a particular plane can be written in polar coordinates as the derivative of the magnitude of r, and this is basically r, the derivative of the angular displacement with respect to the some kind of a reference line, जिसको हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं. सो अगर हम एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से लिखते हैं तो दिस इज नथिंग बट आर क्रॉस एम. सो वी इज नथिंग बट इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप. सो दिस इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस एम आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप. तो इसमें जो है आपका कौन सा क्वांटिटी वैनिश होगा और कौन सा क्वांटिटी सर्वाइव करेगा. सर थीटा वाला हट जाएगा. ठीक है. कैप जो वाला चला फर्स्ट जाएगा. हाँ ये जो सर आर क्वांटिटी कैप के साथ हाँ ये जो क्वांटिटी है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा. जो दूसरा क्वांटिटी है विच इज़ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ये सर्वाइव करेगा. dot. तो मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखता हूँ तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज दिस. एंड जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये जो है इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन. ठीक है. क्योंकि हम दो पार्टिकल की बात करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा कि ये जो है m लिखना यहाँ पे सही नहीं होगा, इसको एक्चुअली रिड्यूस मास लिखना चाहिए. बट रिड्यूस मास क्या है वो मैं थोड़ा पहले डिफाइन करूंगा. आई जस्ट वांटेड टू ऑब्टेन अ मैग्नीट्यूड फॉर द एंगुलर मोमेंटम. तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इतना है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, नाउ आई कैन डिफाइन व्हाट इज एरियल वेलोसिटी. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जो है एक पर्टिकुलर पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेट्स सपोज आई लुक एट सम पार्टिकल्स मोशन. पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी, इन एन इनफाइनाइट सिंपल टाइम पीरियड टी. ओके, लेट्स सपोज पार्टिकल गोज फ्रॉम हियर टू पार्टिकल गोज फ्रॉम हियर. तो ऐसे सिचुएशन में जो है पार्टिकल का जो इनिशियल रेडियल वेक्टर होगा वो इधर होगा, थोड़ी देर बाद जो रेडियल वेक्टर होगा वो इधर होगा. ठीक है. तो इट विल अंडरगो अ चेंज ऑफ डी आर एंड ऑल्सो अंडरगो अ चेंज ऑफ डी थीटा. सो डी थीटा जो अंडरगो चेंज होगा वो ये होगा. और लेट्स सपोज दैट फॉर इनफाइनाइट सिंपल डिस्प्लेसमेंट्स आई फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन. ओके, द एरिया ऑफ दिस रीजन is the area of this region. So the area of shaded region, the area of shaded region dA can simply be approximated by the area of the triangle. अगर आपका जो instantaneous time period में time interval में for a very short time interval क्या बोलते हैं the angular displacement is d theta, the angular displacement is d theta. In that kind of a situation the area of the triangle is half, so this is r d theta, this is r, so half into base into height r d theta. ये ठीक है. For Yes, for
a very short interval of time, if we look at how the r vector changes due to the forces, then I can approximate the area traced out by the r vector as the area of a triangle whose base is r, let's suppose, whose base is r and Sir, whose one height is second. divided by r theta. Sir, Yeah. सर मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस थर्ड प्रॉपर्टी में सीख क्या रहे हैं. Pardon? I'm not able to hear your. क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारी आवाज टूट के आ सर रही वो है. कुछ ऐसा कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम ये सीख क्या रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ कह रहा है स्वप्निल शायद. बेटा, we are discussing the properties of central forces. Third property, sir, what the third property signifies? Signify अगर third property. I'll tell you. Just wait 2 minutes, okay? I'll give you an example. Pehle just follow my discussion. I'll give you an example, then you will understand what it is saying. So area, let me derive it and then I'll tell you with an example. So the area of the shaded portion is this or not? Just tell me. Yes? Yes, sir. Okay. And I can define a quantity, aerial velocity, as the amount of area traced by the r vector in time dt as dA upon dt is equal to half r square d theta upon dt. Yes, d theta upon dt आ गया. तो d theta upon dt अगर आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ r square theta dot. नाउ यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है, यहाँ से हमें ये मालूम चलता है दैट थीटा डॉट इज इक्वल टू L अपॉन mr स्क्वायर. यस, Yes, sir. तो थीटा डॉट इज इक्वल टू m अपॉन एल आर स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं अगर इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ तो दिस बिकम्स हाफ आर स्क्वायर इंटू एल बीइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका एम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है एंड देन यू एंड अप बीइंग लेफ्ट विथ एल अपॉन 2m. So the aerial velocity, that is the area traced out by the position vector of the particle with respect to, let's suppose, the another particle, is basically equal to L upon 2m, where m is a constant, L is a constant, therefore this is also equal to a constant. यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay, now coming to the conclusion of what it means. Okay, let me write down what it actually means. The aerial velocity traced out by the r vector under the experience of central forces, under the experience of central forces is a constant. Okay, this is an important conclusion and a property of central forces. Now coming to the example. Sir. Yes. Sir. Yes. सर पिछले 5 मिनट में जो आपने कराया वो रिपीट कर दो सर, मेरा नेटवर्क चला गया था. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्लेन, वहाँ तक तो आपने देखा होगा. यस सर, यस सर. उसके बाद वी कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी. पी के जगह पे मैंने एम वी को लिख दिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. लिखने के बाद एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड आ गई. फिर मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी जो आर वेक्टर है वो एक एरिया ट्रेस आउट करेगा. फॉर इनफाइनाइट सिमल टाइम पीरियड्स द एरिया ट्रेस्ड आउट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. उसको मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और एरियल वेलोसिटी, जहाँ पे मैं थीटा नॉट जो मैंने ऑब्टेन किया है अभी थोड़ी देर पहले इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम उसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो इट टर्न्स आउट टू बी अ कांस्टेंट. ओके, दैट मीन्स द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी particle experiencing central forces is a constant. A very simple consequence of this is that आपने केपलर्स लॉज तो आपको मालूम है ना? यस सर. केपलर्स लॉज में सेकेंड लॉ क्या कहती है?
कि एरियल इक्वल वेलोसिटी टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया शिफ्ट आउट होता है। ये आपका सन है, ठीक है। तो अगर आपका जो प्लैनेट यहाँ पे है अर्थ, अगर अर्थ यहाँ पे है और यहाँ से जो है यहाँ जाती है, तो द एरिया दैट इज स्वेप्ट आउट फ्रॉम द फोकस इज गिवन बाय आर। ओके, दिस इज द एरिया दैट इज स्वेप्ट आउट। ओके, सो इसको लिख सकते हैं, दिस इज द एरिया दैट इज स्वेप्ट आउट बाय दिस प्लैनेट। आपको तो मालूम है कि जब एलिप्स में होता है तो एलिप्स में जो है प्लैनेट्स आर नॉट नेसेसरीली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। सन के रेस्पेक्ट में इनका जो है डिस्टेंस चेंज होता रहता है, और जब पास आते हैं तो एरियल वेलोसिटी स्वेप्ट आउट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज दिस। ओके, दिस इज द एरियल वेलोसिटी दैट इज स्वेप्ट आउट। सिंस एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और क्योंकि जो सन है इट इज़ नॉट इक्विडिस्टेंट, कुछ केसेस में इट इज़ नियरर द अर्थ, कुछ केसेस में इट इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जहाँ पे इट इज़ नियरर द अर्थ उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन बोलते हैं, पेरीहेलियन HELION। एंड जहाँ पे दूर होता है उसको बोलते हैं एपेहेलियन। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जो आपने सवाल पूछा था उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। The consequence of the fact that aerial velocity is a constant means that the velocity here is greater than the velocity here. अगर velocity यहाँ पे v1 है और दूर इसका velocity है v2, the orbital velocity v1 is automatically greater than the velocity v2. This is a consequence. तो मतलब अर्थ जब मतलब सर तेज घूमने लग जाएगी। हाँ, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे अर्थ सन के करीब जाती है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे अर्थ सन से दूर चला जाता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। आपने शायद किसी यूट्यूब वीडियो वगैरह में सोलर सिस्टम का सिमुलेशन देखा होगा, उसमें देखा होगा जी अर्थ जैसे पास आता है तो जल्दी चला जाता है और फिर धीरे धीरे जाता है, फिर जल्दी चला जाता है, फिर धीरे धीरे जा रहा है, फिर जल्दी आ जाता है। देखा है, जल्दी चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखा है सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। एंड एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट। द फैक्ट दैट एरियल वेलोसिटी, तो ये आप ये क्या है? क्या चीज? v1 ग्रेटर देन v2 आप बता रहे हैं, ये क्या है? बेटा v1 is the velocity of earth at the perihelion and v2 is the velocity of the earth at the aphelion. और सर, वो जो rotation तेज कांस्टेंट होता है वो है। एरिया। बेटा एक तो मेरा आपका ऑडियो ब्रेक हो क्या आ रहा है, सो आई एम Sir? नॉट एबल टू हियर द क्वेश्चन। यस सर जो dr/dt है वो एक जो आपने बताया कि एक पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ट्रेस करता है, तो ये नहीं प्लेन नहीं, में तो पोलर सर कोऑर्डिनेट्स कैसे ट्रेस नहीं करता है। जब भी आप किसी सरफेस में मोशन को स्टडी करते हैं, आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में स्टडी कर सकते हैं और आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में स्टडी कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे Yes, भी sir. रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे एक्स वाई में स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं यार, इक्वेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वहाँ पे हमेशा आर थीटा के टर्म्स पे फ़ायदा है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसका रेडियल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसीलिए मैंने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा है। अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में लिखता तो मैं फिर यहाँ पे लिख देता वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। फिर दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट मच मतलब इसको सिंप्लीफाई करने में ही टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर उसके बाद क्यों क्वेश्चन क्या था आपको? क्वेश्चन क्या था? So the last property of central forces is that the aerial velocity is a constant, which simply means that the area that is traced out by the radial vector with given in a given amount of time is fixed for that given amount of time. मतलब if this is the area that is traced out by the vector in some kind of a time del t,
and then this will be the area traced out by the same vector in some kind of a del t. Then because right hand side में it is far from the sun, left hand side में it's near the sun, इसका automatic consequence होता है कि the velocities near the perihelion is far greater than the velocities away from the perihelion, away from the sun, which is the aphelion. तो मतलब जैसे जैसे अर्थ पास आएगा सन के, इट विल गो वेरी फास्ट, और फिर धीरे धीरे हो जाएगा. फिर जैसे जैसे अर्थ के सन के पास आएगा, इट विल गो वेरी फास्ट, और फिर धीरे धीरे इस तरह से मोशन होता है अराउंड द सन. ऐसा नहीं है कि जो वेलोसिटी है विथ विच द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इज़ अ कांस्टेंट. इट इज़ नॉट. वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे जैसे अर्थ सन के करीब जाता है वैसे वैसे उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे अर्थ सन के दूर चला जाता है वैसे वैसे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी घटती जाती है. दैट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस. एंड दैट समर और विंटर से बताना सर इसका. समर और विंटर तो टिल्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना. समर और विंटर को एक्सप्लेन करने सर के उससे लिए रिलेटेड नहीं है क्या ये? सर उससे रिलेटेड नहीं है. किससे? मैं सिर्फ किससे रिलेटेड नहीं है? टिल्ट से. नहीं मतलब समर में कुछ और विंटर में कुछ. अच्छा एक बात बताओ, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर. हाँ, तो विंटर होता है. तो बेसिकली इट हैज़ ऑल्सो टू डू विद द टिल्ट ऑफ द सन अर्थ. सो दैट्स वाई मैं उसको रिलेट नहीं करूँगा, बिकॉज देयर इज़ अ टिल्ट ऑफ द अर्थ दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स. तो अगर सन इस तरफ है तो एक टिल्ट होता है कि सन से एक रीजन दूर होता है, एक रीजन पास होता है. सो दैट ऑल्सो हैज़ its own effect in the seasons. So I'm not connecting this with seasons. I'm only connecting this with the nearest point and the furthest point. Is this clear? इसमें कोई डाउट है? No sir. नो सर. No, sir. All right. Now this is not a very difficult topic. It is just that we are discussing the properties of central forces. Central forces are conservative. The first property. Second property, the magnitude of angular momentum when particles are undergoing motion due to central forces is conserved, and the motion is always restricted to a plane, and the aerial velocity of the r vector for particles undergoing motion due to central forces is also a constant. So these are some fixed properties जो आप बाद में कभी भी किसी भी central force के लिए apply कर सकते हैं. Now there is one particular topic that is given in your syllabus which is looking at the nature of the motion. तो हमने जब स्टार्टिंग में न्यूटन्स लॉस पढ़ा था, हमने बोला था कि न्यूटन सेकेंड लॉ के फॉर्म में हम फोर्सेस को लिखते हैं, एंड उसको लिखने के बाद वी ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी. ठीक है, अभी तक हमने ट्रैजेक्टरी को एनालाइज नहीं किया है कि सर्कुलर ट्रैजेक्टरी होगा, एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी होगा, किस तरह का ट्रैजेक्टरी होगा. सो देयर आर वेरियस सिनेरियोज पॉसिबल. सो फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मोशन देखते हैं अराउंड द प्रोटॉन, या आप अगर कलिजन देखते हैं वन प्रोटॉन बॉम्बार्डिंग ऑन टू अनदर, या फिर आप अगर देखते हैं प्लानिटरी मोशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो दीज आर ऑल सेंट्रल फोर्सेस. सो वी वांट टू what I want to give you now is basically an idea about how to represent the equation of motion under central forces. ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ 2-4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं जो शॉर्टकट से हम इसको डिराइव कर सकते हैं. बट what I want to show you is how to represent the equation of motion for particles undergoing some kind of a displacement due to central forces. So this topic is known as reduction of a two body problem to a single body problem. और वो ऐसा नाम क्यों है वो में अभी आपको मालूम चल जाएगा. This is called reduction of a two body problem to a one body problem. Okay. नाउ यहाँ पे मैंने कुछ कंक्लूजन्स यूज़ किया है फ्रॉम द रिडक्शन प्रिंसिपल, बट क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना था तो मैंने इस चीज़ में डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट कर दिया है. बट यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैं सिर्फ एक मास की बात कर रहा हूँ, जबकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम एक मास की बात नहीं कर रहे, हम 2 मासेस की बात कर रहे हैं. देयर इज़ ऑलवेज 2 मासेस इन्वॉल्व. ठीक है, सो वी कैनॉट राइट द ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ 1 मास. अगर अर्थ सन की वजह से मूव कर रही है तो सन भी अर्थ की वजह से मूव कर रहा है. ठीक है, if an apple is falling from the tree towards the earth, then earth is also falling towards the apple. ठीक है, there is no singular motion of one particle due to other. ऐसा नहीं है कि sun is fixed in space and earth is revolving around the sun. ऐसा नहीं है. The sun is also undergoing motion
ड्यू टू द अर्थ, हो सकता है दैट मोशन इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल और नॉट इवन अप्रिशिएबल बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द मास डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. बट सिंस देर आर टू पार्टिकल्स इन्वॉल्व, एक पार्टिकल का अगर कोई मोशन है तो हो सकता है दूसरे पार्टिकल का भी कोई मोशन हो. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज दैट इट्स डिफिकल्ट, यहाँ पे इवन तो मैंने लिख दिया है, इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट सिंगुलर पार्टिकल का मोशन क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली द नेचर ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्व आर फॉर टू पार्टिकल्स. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. बेसिकली जो आपका फोर्स इक्वेशन आएगा, इट्स अ टू बॉडी प्रॉब्लम, but we want to simplify it to a one body problem because that is much easier to handle. So let us look at that. Reduction of a two body problem to a one body problem under central forces. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर ये एप्पल यदि सर नीचे गिरेगा तो सर एप्पल नीचे गिरेगा ये अपन मतलब ऑब्जर्व करें, लेकिन अर्थ सर ऊपर कैसे आ रही है ये कैसे पता मतलब. अच्छा एक बात बताओ, तुम मान लो किसी पानी में हो, ठीक है, पानी में नाव है, ओके, स्टिल लेक है, और वो नाव के ऊपर तुम खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारा जो दोस्त है वो भी बगल में एक नाव है, ठीक है, वो नाव के ऊपर वो बंदा खड़ा है, ठीक है. अगर मैं तुम दोनों को एक रस्सी दे देता हूँ, ठीक है, उस रस्सी की वजह से तुम एक दूसरे को खींचते हो, तो क्या मोशन सिर्फ एक ही इंसान का होगा या दोनों इंसान के होंगे? सर दोनों का होगा. ठीक है. अगर ये तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत बड़े नाव में बैठा हुआ है जो बहुत हैवी है, अब बताओ मोशन दोनों का ही होगा सिर्फ एक ही बंदे का होगा? सर दोनों का ही होगा, लेकिन उसका मतलब कम होगा बड़े वाले ऑब्जेक्ट. नेग्लिजिबल होगा. जितना ज़्यादा बड़ा आपका शिप है उतना ही उसके मोशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खींच करके इसके पास आ सकते हो. तो इट कैन क्रिएट द इल्यूजन दैट दिस शिप इज़ एट रेस्ट, बट ऐसा नहीं है. सिमिलरली अर्थ में जब एक एप्पल गिरता है तो अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंसेस फोर्स, एंड अर्थ में भी एक हाईली नेग्लिजिबल बट स्टिल नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्स में तो अर्थ किसी पॉइंट पे फिक्स थोड़ी ना है. ऐसा तो नहीं है कि स्पेस में अर्थ को किसी कील में मार के रखा हुआ है और अर्थ वहीं पे फिक्स रहेगा. अर्थ इज़ ऑल्सो फ्री टू मूव अराउंड. उसी तरह से सन इज़ ऑल्सो फ्री टू मूव अराउंड. तो जब अर्थ और सन सिस्टम के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, तो इफ़ अर्थ इज़ एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ड्यू टू द सन इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ड्यू टू द अर्थ. इफ अर्थ इज़ अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ अ मोशन, देन सन मे ऑल्सो अंडरगो सम काइंड ऑफ अ मोशन. इट डिपेंड्स अपॉन how different the masses are. For example, अर्थ और सन सिस्टम में हम सन का मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अप्रिशिएबल डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होता है. लेकिन शायद आपने कोई यूट्यूब में अगर एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड वीडियोस देखा होगा तो बाइनरी स्टार्स के बारे में देखा होगा. बाइनरी स्टार्स में क्या होता है, दो स्टार्स जो है एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव करती रहती है. देखा है कहीं पे दो मासेस से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन सेंटर ऑफ मास. वो क्यों होता है? वो तब होता है जब व्हेन टू बॉडीज आर एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल फोर्सेस वेयर द मासेस आर कंपेरेबल. अगर मासेस कंपेरेबल होता है तो दोनों ही बॉडी मूव करती रहती विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन सेंटर ऑफ मास. वो हमें अर्थ सन सिस्टम में दिखाई नहीं देता क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ. सिमिलरली एप्पल का मास जो है अर्थ के कंपेरिजन में बहुत कम है. तो देयरफॉर हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, रेस्ट पे है, बट ऐसा नहीं होता है. इन रियलिटी बोथ ऑब्जेक्ट्स आर फ्री टू मूव अराउंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes sir, got it. Okay. Yes sir. And that is what we are trying to do here. मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ कि रिडक्शन ऑफ अ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम, इट इज़ बेसिकली यही प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम ये है कि अगर हम प्रिसाइज मैनर में कैलकुलेशंस करना चाहते हैं कि क्या होगा सेंट्रल फोर्सेस में, तो हमें दोनों बॉडीज़ के पोजीशंस को देखना पड़ेगा और उनकी एक्सेलरेशंस को देखना पड़ेगा. लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके एक वन बॉडी प्रॉब्लम में जाना चाहते हैं कि दो इक्वेशन से हमें सिंगल इक्वेशन में आए. Let me do the derivation and then you'll understand what's happening. Alright, so let me first write down कि कोई external coordinate system है जिसके रेस्पेक्ट में हम जो है दो पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं. So let's suppose this is x, this is y and this is z, and there is some kind of a particle here and there is some kind of a particle here. Now
सेंट्रल फोर्सेस अगर दोनों पार्टिकल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट मीन्स द फोर्सेस इज डायरेक्टेड इन दिस मैनर. ठीक है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये लाइन के अकॉर्डिंग होगा. हाउएवर, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक्सटर्नल एक कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है. तो लेट मी चूज दिस एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम with respect to which the position of the first particle is given by r1 and the position of the second particle is given by r2. So this is, let's suppose, r1, which is the position of the first particle, and r2, which is the position of the second particle. So this is, let's suppose, m1 and this is, let's suppose, m2. ठीक है. अब इन दो मासेस के बीच में जो भी मोशन हो, आई डोंट नो, मे बी मास अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद मास यहाँ पे चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला जाएगा, आई डोंट नो, वट एवर मोशन दे हैव, जो मास m1 की जो भी ट्रैजेक्टरी है, मास m2 की जो भी ट्रैजेक्टरी है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फोर्स, that can only be written in terms of the position vectors r1 and r2. All right, so it simply means that first of all, एक तो कि ये जो फोर्स है it is directed towards this line. ये जो लाइन है, let's suppose इसको मैं r बोल देता हूँ, let's suppose this is r. So r, so position of m1 with respect to o is simply given by r1. R1 contains coordinates x1, y1 and z1, and position of m2 with respect to o is given by r2. R2 contains coordinates x2, y2 and z2. So whatever equation of motion we will have must give us solutions in terms of r1 and r2. सिर्फ r1 और r2 ही हमें बता सकता है कि इन दोनों का जो ट्रैजेक्टरी क्या है. However, जो फोर्स है is a central force, and because it's a central force, therefore the central force is Fr r cap. r cap का मतलब है कि बेसिकली r अपॉन r मैग्नीट्यूड. ओके, तो r क्या है? r की जो डायरेक्शन है वो ये है. r की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये है. सो दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स Fr अपॉन r1 minus 2, r1 minus r2 ना, r1 minus r2. Okay, the force is basically directed towards this r1 minus r2 and instantaneous जो भी आपका r है. Okay, तो ये simply r लिख देता हूँ मैं. This is the instantaneous distance and this is, so force is directed towards r1 minus r2. So now the question is, what I'm going to do is I'm going to transform, or I'm going to change, or I'm going to reduce the force equations which I'm initially going to write in terms of r1 and r2 to in terms of r. r क्या है? r is not the position vector of anything, but rather it is the instantaneous relative distances between m1 and m2. All right, so first of all we need to write therefore the equations of motion, but before we write the equations of motion, let us write the transformation equations between r1 and r2 etc. तो r1 और r2 के बीच में जो भी transformation equation is, that is simply given by here r is equal to r1 minus r2. यहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास लेट्स सपोज आपका यहाँ पे है. ओके, लेट्स सपोज दिस इज r. तो अगर ये r है तो सेंटर ऑफ मास r इज नथिंग बट इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 divided by m1 plus m2. So this is the center of mass, and I can also find out with respect to the center of mass क्या होगा. Let's suppose अगर मैं ये वेक्टर क्या है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ और ये वेक्टर क्या है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ, वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. बट इज दैट गोइंग टू हेल्प? That is probably not going to help you at all. So let's leave that. It's going to increase the length of the derivation. Okay, so this is the center of mass of this kind of a configuration where if I say that with respect to the center of mass definition दे देता हूँ बस. This is given by r1 dash
r1 dash, and this is given by r2 dash. Then you can further define r1 dash is equal to r1 minus capital R and r2 dash as r2 minus capital R. मैं इसको क्यों डिफाइन कर रहा हूँ? मैं इसको इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्सटर्नल लिया है. इन सर्टेन सिचुएशंस द कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी टेकन एट द सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास में लेकर के भी हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव डिफाइंड दैट इन अ स्पेसिफिक manner, which is this. Now coming back to the equations of motion. Because there are two particles, the first equation of motion will be for m1. m1 के लिए first equation of motion क्या होगा आपका? m1 d2 r1 upon dt2 is equal to f of r cap. Yes, which is nothing but f of, हाँ कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया. And for m2 the equation of motion is m2 d2 r2 in terms of dt2 is equal to f of r cap. Yes, now I am not specifying what is the nature of fr, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट राइटिंग दैट फॉर सेंट्रल फोर्सेस एफ आर, देन दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. यस और नो? सर ये फोर्स भी तो है सर, एफ m1 d2 r अपॉन dt स्क्वायर. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ना. F इज इक्वल टू ma, तो यस सर, दिस इज नथिंग बट m d2 r अपॉन dt2 ना, r1 के लिए, f1 के लिए, a1 के लिए. तो यही तो है. f1 को मैंने r लिख दिया. r क्या? यहाँ पे आपका फोर्स एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे मास टाइम्स एक्सेलरेशन आ गई. दिस न्यूटन सेकंड लॉ ना. यस सर. This is the Newton's second law, that whatever is the force is equal to m d2r upon dt2. Now interesting बात ये है कि जो फोर्स है वो r के टर्म्स पे है, लेकिन क्योंकि हम m1 की बात कर रहे हैं, m1 का इंस्टेंटेनियस पोजीशन r1 है. ठीक है, उसी तरह से m2 की इंस्टेंटेनियस पोजीशन r2 है, बट फोर्स इज इन टर्म्स ऑफ r. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होंगी क्या? ये कहाँ पे? m1 और m2 पे जो फोर्सेज लग रहे हैं. हाँ, तो सर वो ये सर एक r कैप है आपने तो दूसरा माइनस r एक्सप्रेशन तो कैप दोनों का होना सेम चाहिए. लिखा है. हाँ, एक्सप्रेशंस मैंने सेम लिखा है. यस, हाँ सर ये डायरेक्शन, हाँ नहीं न्यूटन सही थर्ड है, लॉ नहीं के सही है, अकॉर्डिंग. सही है, सही है. ओके फाइन, नेगेटिव लगा देता हूँ. ठीक है, दिस इज फाइन ना. ये सर. तो यहाँ पे कितने Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशंस है? दिस इज बेसिकली 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस ना, 3 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि आर के अंदर क्या आता है? एक्स वाई जेड आता है, तो 3 सेकेंड ऑर्डर ODE. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 सेकेंड ऑर्डर ODE. तो मतलब अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और R1 R2 फाइंड आउट करना है, तो आपको टोटल 6 सेकेंड ऑर्डर ODE साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. यस, yes. साइमल्टेनियसली नहीं सॉरी, क्योंकि x, y और z कंपोनेंट्स आर सेपरेट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर नॉट साइमल्टेनियसली, बल्कि 6 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने पड़ेगा जहाँ पे 3 का पेयर है. सो बेसिकली x के रेस्पेक्ट में 2 डिफरेंशियल, x1 का x2 के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, y1 का y2 के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और z1 का z2 के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आप दो यहाँ पे, दिस इज बेसिकली 2 + 2 + 2 है, 2 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x1 एंड x2, और ये 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y1 एंड y2, और ये 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू z1 एंड z2.
Solving two second order differential equations simultaneously is a little bit of a hassle. थोड़ा सा वो difficult है. आप differential equation solve कर रहे हैं, आपको मालूम है. Yes or no? Yes sir. बिकॉज दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की वजह से मोशन कर रहा है. तो अगर एक पार्टिकल यहाँ से, पहले ये था एक पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो आर चेंज होगी, तो दूसरा पार्टिकल भी इसके वजह से आगे या पीछे होगा. तो ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. बिफोर वी कम टू द सॉल्यूशन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट इन फ्री स्पेस when two particles are interacting, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो अर्थ मून सिस्टम हो, चाहे वो अर्थ सन सिस्टम हो, सिंस कोई भी पार्टिकल स्पेस में फिक्स्ड नहीं होता, दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. मैं अगर तुमको खींचूंगा तो तुम भी मुझे खींचोगे, तो आवर मोशन इज रिलेटिव. इसीलिए हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे फर्स्ट पार्टिकल के लिए और सेकेंड पार्टिकल के लिए, तो हमें दो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज अ टू बॉडी प्रॉब्लम. दिस इज नोन एज अ टू बॉडी प्रॉब्लम. मतलब दो बॉडीज के इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है. दैट मीन्स टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली. दैट इज नॉट समथिंग दैट इज ईजी. Understood the problem? What is the problem with these kind of calculations? Yes. Yes. Okay. So what we are going to do is, what people have already done is that instead of solving a two body problem, they reduce it to a one body problem. मतलब instead of solving, let's suppose 2 plus 2 plus 1 differential equations, they reduce it to 1 plus 1 plus 1 differential equation. मतलब a singular डिफरेंशियल इक्वेशन. वो कैसे कर सकते हैं? वो तब कर सकते हैं जब हम R1 और R2 की जगह पे R को सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो उससे क्या होगा? R इज नॉट नेसेसरली द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनीथिंग. R इज जस्ट द वेक्टर कनेक्टिंग दीज टू मासेस. लेकिन एक बार हमें R मिल जाता है, फिर उस R से हम R1 और R2 को ऑब्टेन कर सकते हैं. उस R से जो है हम R1 और R2 को ऑब्टेन कर सकते हैं. So how to do that? Okay, let's do that. So let's suppose this is equation number मैंने कोई मार्किंग किया था यहाँ पे पॉइंट्स नहीं. Let's suppose that this is equation number 1 and this is equation number 2. So let us add these two equations. Yeah, adding 1 and 2. बेटा म्यूट कर लो your mics. Adding 1 and 2, what do we get? So if you add these two equations, I simply end up getting. सर Yeah. सर ये जो आपने जो ये फॉर M2 के लिए लिखा है सर, इसमें माइनस कैसे आया था सर? ये समझ नहीं आ रहा. अगर एक M1 का जो फोर्स है, लेट्स सपोज ये M1 इस तरफ डायरेक्टेड है, तो M2 जो है इस तरफ डायरेक्टेड होगा ना, ऑपोजिटली. फोर्स एक्सपीरियंस बाय M1, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ना. ओके सर. जो मान लो M1 जो एक्सपीरियंस कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं. तो M2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में होगा. ओके सर. ठीक है. सो देयरफॉर अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो d2 r1 अपॉन dt2 ऐड नहीं करते हैं. लेट मी सब्ट्रैक्ट इट. नहीं, ज़ीरो नहीं होगा. लेट मी सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेट मी सब्ट्रैक्ट 2 from 1. ओके, subtract 2 from 1. So this will become minus d2 r2 upon dt2 is simply equal to 1 upon m1 fr r cap minus minus plus 1 upon m2 fr r cap. ठीक है. So this is nothing but d2 r1 upon dt2 minus d2 r2 upon dt2 is equal to 1 upon m1 plus 1 upon m2.
एफ ऑफ आर आर कैप। नाउ यहाँ पे जिस तरह से हम R1 और R2 को R के टर्म्स में लिख रहे हैं, उसी तरह से वी कैन डू अनदर रिडक्शन which is known as reduced mass. Reduced mass, have you heard of it? Yes, sir. Yes, sir. Reduced mass is defined as 1 m2 upon mu. mu. So this is nothing but 1 upon mu is equal to m1 plus m2 divided by m1 m2, or mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2. So the benefit of a reduced mass is the same as the benefit of, let's suppose, R. It simply helps us simplify the equations in terms of certain quantities that we can obtain the moment we define the system, और उसके बाद equations को हम simplify कर सकते हैं. So for example, this simply becomes d2 upon dt2 r1 minus r2 is equal to 1 upon mu f of r r cap. So R1 minus R2 is nothing but R. ठीक है, so this becomes d2R upon dt2 is equal to f of R upon mu R cap. So can you see here, this is now a single differential equation. This is now, we have reduced the problem from two differential equations, two equations. We have reduced the problem from two equations, two ODEs, two second order ODEs, two second order ODE to a single second order ODE. Okay, so if I solve this, then its solution is simply nothing but RT. ठीक है, एक बार हमें RT मिल जाता है, once we find RT, then based on a choice of an external coordinate frame of reference, हम उसके रेस्पेक्ट में R1 और R2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is known as what is called the reduction of a two body problem to a one body problem. Are you following? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. सर ये जो रिड्यूस्ड मास है वो बस मास का सम है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बेसिकली आप एक तरीके से सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन. ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्ट. और रिड्यूस मास जो है बेसिकली गिव्स एन आइडिया अबाउट वेदर और नॉट देयर इज़ अ ह्यूज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन m1 एंड m2. ठीक है, अगर m1 एंड m2 के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है तो वो हमें मालूम चल जाता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर m1 इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू m2, तो इसका क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का रिड्यूस मास को क्या होगा? रिड्यूस मास विल बी व्हाट? mu is equal to m1 हो जाएगा सर, m1 बढ़ाए ना, तो नीचे m1 m2 है ना. हाँ, 1 upon m2 0 हो सके को टेंड कर जाएगा. It will tend to और Neglect m2. M2. it will tend to m2 ना. Are you understanding? Let's suppose okay, मैं सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि let's suppose masses are m, capital M and small m. ठीक है, तो in that kind of a situation, reduced mass is equal to capital M small m divided by capital M plus small m. तो अगर कैपिटल M इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल m, तो ये आपका बन जाएगा स्मॉल m. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस. तो यहाँ से जो है Yes. ऐसे सिचुएशन में मैं रिड्यूस मास की जगह पे मास को यूज़ कर सकता हूँ. सो फॉर एग्जांपल, मैंने जो यहाँ थोड़ी देर पहले आपको एंगुलर मोमेंटम लिखा था, ये एक्चुअली सही एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था उस टाइम पे मैं लिखूँ कि ना लिखूँ. ये जो है एक्चुअल एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली म्यू. लेकिन अगर हम अर्थ या सन सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे दूसरा मास बहुत बहुत मैसिव होता है, तो ऐसे सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम की जगह पे मैं जो स्मॉलर मास है वो लिख सकता हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. तो जहाँ पे भी एक मास बहुत छोटा होगा वहाँ एंगुलर मोमेंटम आप अर्थ के मास के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? आर यू फॉलोइंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रीजन? तो इवन दो मैंने सिस्टम को इसके वही हाँ
सिस्टम को मैंने इसके मतलब टर्म्स सर में लिख वही दिया। मतलब मोशन। हाँ बेसिकली सन जो है ज़्यादा हिलता नहीं है, दैट्स द पॉइंट, बिकॉज सन इज़ सो मैसिव इट डज नॉट अंडरगो मच मोशन। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो बहुत बड़ा यात में टाइटैनिक के ऊपर खड़ा है और तुम छोटे से बोट पे खड़े हो और दोनों के बीच में रस्सी लगा दें, तो तुम अगर इसको खींचोगे तो तुम ही उसके पास जाओगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। लाइक फिजिकली स्पीकिंग इट्स नॉट ट्रू, यस सर। बट इट्स जस्ट दैट वो जो मोशन एक्सपीरियंस करेगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू द मोशन यू एक्सपीरियंस। अंडरस्टूड? तो सन और अर्थ के सिस्टम में अर्थ का इतना ज़्यादा माइन्यूट है मास कि हम अर्थ के मास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन रियलिटी एक्चुअल में हम नहीं कर सकते। एक्चुअल में हमें रिड्यूस मास के टर्म्स पे ही कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम जुपिटर और अर्थ के बारे में बात करेंगे उस केस में जो है हमें रिड्यूस मास लेना पड़ेगा। ठीक है, बट सन और अर्थ के केस में हम अर्थ की मास ले सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द सन। तो एक बार जो है इस सोल्यूशन से हम R निकाल लेते हैं, फिर उस R से जो है वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ R1 एंड R2। ठीक है, सो वंस यू फाइंड RT you can find the individual position vectors of m1 and m2। कैसे? well r1 is nothing but equal to r plus, ये हम लिख सकते हैं m2 अपॉन m1 plus m2 r, and r2 is nothing but capital R minus m1 by m1 plus m2 r। Is this equation correct? Can you see that it is true or not? Yes. वो जो आपने लगाया सेंटर ऑफ मास उसी से डिराइव। Is this correct or not? Should I elaborate? ठीक है, तो इसका मतलब प्लीज इलाबोरेट तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं ना। सो लेट मी चेक, इफ़ यू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ओके आर मैंने इसको मैं यहीं से दिखा देता हूँ। आर क्या है? आर ये है ना, दिस इज आर। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज बेसिकली इक्वल टू R1 इज दिस इज बेसिकली इक्वल टू, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। This is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 plus m2 upon m1 plus m2 r1 माइनस r2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका, नीचे आ गया m1 प्लस m2, ऊपर आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m2 r1 माइनस m2 r2। तो ये जो है ये टर्म हो गया कैंसिल, और ये आपका हुआ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r1, सो विच इज़ नथिंग बट r1। यही तो है। ठीक है, ओके सर। उसी तरह से आप दूसरे इक्वेशंस के भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, यू स्टार्टेड विथ टू इक्वेशंस, यू सब्सटीट्यूटेड r इज इक्वल टू r1 माइनस r2, यू सिंप्लीफाइड टू अ वन बॉडी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ r, और जब आपको वो सोल्यूशन मिल जाता है उस सोल्यूशन से आप दोबारा r1 और r2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r1 और r2 आर बेसिकली द यूनिक पोजिशंस ऑफ m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास इज r। ठीक है, आपने सोल्यूशन किया r के टर्म्स पे, बट यू कैन ऑब्टेन द ओरिजिनल पोजिशंस r1 एंड r2 विद रिस्पेक्ट टू योर सोल्यूशन। क्लियर? नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ही ऑब्टेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी एनालिसिस है। द क्वेश्चन इज दैट एनालिसिस आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस है,
वो मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता देता हूँ. Now the equation that we obtained is this. This is the equation. Force equation for central forces. One body problem, okay? The force equation for central forces, one body problem, is mu d2r upon dt2, mu d2r upon dt2 is equal to f of r. अभी तक मैंने फोर्स का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, मैं सिर्फ इसके टर्म्स में ही लिख रहा हूँ. नाउ टेल मी व्हाट इज d2r अपॉन dt2? एक्सेलरेशन. नाउ ये मैंने जो r है वो कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी तक नहीं लिखा है, मैं r के टर्म्स में लिख रहा हूँ. r तुम्हारा कार्टेशियन में भी हो सकता है, पोलर में भी हो सकता है, स्फेरिकल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. r इज जस्ट अ पोजीशन वेक्टर, दैट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट मास पार्टिकल टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ना मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन, एंड देयरफॉर इट इज बेटर टू एनालाइज द मोशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में r डबल डॉट क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में r डबल डॉट क्या होता है? एनीबॉडी नोस? r डॉट यस, मैंने डिराइव किया. बता सकते हो? रेडियल और टेंजेंशियल दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं. हाँ, तो एक्सप्रेशन बता सकते हो? Yes, जैसे sir. d2r अपॉन d2t. r डॉट डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r कैप प्लस r थीटा डॉट डॉट प्लस 2r डॉट थीटा कैप डायरेक्शन. फिर से बताना. r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर r कैप प्लस प्लस r r थीटा थीटा डबल डॉट डॉट प्लस 2r प्लस डॉट 2r डॉट थीटा डॉट थीटा कैप. ये आपने क्लास में डिस्कस किया है क्या, जहाँ वेक्टर्स वगैरह में? नो सर. तो सर ये हमें ना नो सर, वो फॉर्मूला लिखा हुआ था. उसमें तो नहीं किया सर, पर ठीक है. अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो केपलर में फर्स्ट चैप्टर में दिया है, मैथमेटिकल मेथड्स में दे हैव शोन द ट्रांसफॉर्मेशन. जिस तरह से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये है, उसी तरह से एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक दिस. इसका प्रूफ दिया हुआ है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल, जस्ट 2 पेजेस का डेरिवेशन है. इट्स गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केपलर. इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक एट इट. सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, नाउ आप पूछोगे कि ये एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट द थिंग इज r डबल डॉट, ये r डबल डॉट ही है ना बेसिकली. दिस इज r डबल डॉट, सो r डबल डॉट जो है इन टर्म्स ऑफ xyz coordinates is very simple. x double dot I cap plus y double dot j cap plus z double dot k cap. But because motion is restricted to a plane, there is a certain amount of bound motion happening. So there is a certain amount of rotation that is happening in the motion. Therefore, it's better to write it in polar coordinates. So polar coordinates में, ये polar coordinates में 2D motion है, तो it can be written as r double dot minus r theta dot square r cap plus r theta double dot plus 2r dot theta dot. Yes, this is clear beta? yes sir. So it is not different, it's just that its mathematical terms are written like this. So this is the radial acceleration and this is what is known as the angular acceleration. So now if I so this is the tangential or transverse or angular acceleration. So this is mu r double dot, basically r vector double dot. ठीक है, r vector double dot, not r is radial, r vector is the position vector. r vector double dot is equal to f of r cap. So यहाँ पे आ जाता है आपका mu. अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ तो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r cap प्लस r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा कैप इज इक्वल टू f of r कैप. ठीक है, अब यहाँ पे r कैप है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में r कैप है, थीटा कैप नहीं है. तो थीटा कैप का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा और हम लिख सकते हैं दैट म्यू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू f of r. Yes? yes sir.
So therefore, finally we have obtained our equation mu d2r upon dt2. Now this r is not the same as this r, okay? R vector is the position vector. इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ये तो confusion होगा. R is the radial distance, r vector is the position vector. So this minus r d theta upon dt2 is equal to f of r. ना कोइंसिडेंस की बात ये है कि इसके आगे जो है, जो डिडक्शन है, इससे कैसे प्लानिटरी मोशन को स्टडी किया जा सकता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1 बजे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं डिराइव करके दिखाया था. आपके सिलेबस में वो डेराइवेशन नहीं है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी कि ए इक्वेशन के बाद फर्दर एनालिसिस क्या है, वो वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर, आपके ग्रुप में नहीं उनके ग्रुप में शेयर किया, बट मेरे चैनल में है तो आप उसको देख सकते हैं. फर्दर एनालिसिस क्या है, मतलब प्लानिटरी मोशन के लिए फर्दर एनालिसिस क्या होगा. बट आपके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, दैट रिडक्शन ऑफ द टू बॉडी प्रॉब्लम टू अ सिंगल बॉडी प्रॉब्लम. दिस इज द रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम. इसकी जो सोल्यूशन है दैट इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कस इन विद द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है मैंने थोड़ी देर पहले, तो शाम को अगर आपको टाइम मिले और अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो सोल्यूशन भी आप देख सकते हो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ओनली डू व्हाट इज डिस्कस्ड इन द सिलेबस व्हिच इज द एनर्जी एनालिसिस. यहाँ से एनर्जी का एनालिसिस क्या है वही मैं डिस्कस करूँगा. तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर. ओके, तो ये हो गया आपका जो है क्या बोलते हैं फोर्स इक्वेशन फॉर सेंट्रल फोर्सेस. अब एंगुलर मोमेंटम भी जो है ना, एंगुलर मोमेंटम को भी आप यहाँ से मैं रिड्यूस मास के टर्म्स पे डिड्यूस कर देता हूँ. ओके, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस मास भी वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज मुझे वो भी चाहिए होगा, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस मास. Angular momentum in terms of reduced mass, that is nothing but, quite simply put, the linear momentum is nothing but mu r dot. ठीक है, ये है linear momentum और आपका angular momentum है r क्रॉस mu r dot, जहाँ पे हमने m लिखा था. so this is nothing but r cap क्रॉस mu, velocity में r dot r cap plus r theta dot theta cap. so this is nothing but mu r square theta dot is the magnitude of the angular momentum, जिसको हम लिखेंगे L. L is equal to mu r square theta dot. ओके, और यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं that theta dot is equal to L upon mu r square. Okay, now what we want to do is, or what's given in your syllabus is basically the energy analysis. Energy analysis of any kind of an object which is experiencing some kind of a central potential. ठीक है, तो अभी तक हम सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहे थे, बट अगर सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड कोई सेंट्रल पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, देयरफॉर दे विल हैव सम काइंड ऑफ अ पोटेंशियल एसोसिएटेड विद इट. सो इफ वी लुक एट द एनर्जी ऑल्सो वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिडक्शंस. आप अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से भी हम ट्रैजेक्टरी के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. और इन शॉर्ट हम एनर्जी को भी देख करके, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को देख करके भी हम कुछ थोड़े से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. सो ट्रैजेक्टरी का एनालिसिस एक सेपरेट एनालिसिस है और एनर्जी एनालिसिस एक सेपरेट एनालिसिस है. सो लेट अस डू द एनर्जी एनालिसिस. ओके, ऑलराइट. सो द एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ अ गिवन बॉडी is nothing but the sum of the kinetic energy plus the potential energy, right? So what is the potential energy of any kind of a body undergoing central forces? Half mv square plus u. Okay, so half mv square को हम कैसे लिख सकते हैं? Because we are already saying that this is written in terms of polar coordinates. So polar coordinates में मैंने यहाँ पे velocity को लिखा था थोड़ी देर पहले. If you see polar coordinates के terms पे I wrote the velocity like this. Okay, I wrote the velocity in this manner. So यहाँ पे if I write it in terms of polar coordinates, so v square को x y के टर्म्स पे लिखते हैं vx square plus vy square, right? और polar coordinates में लिखते हैं vr square plus v theta square, right? polar coordinates में. तो ये कितना होता है r dot square plus r square theta dot square plus r square. ठीक है. So in polar coordinates the velocity square is written in this manner. So this can be written as half
m r dot square plus r square theta dot square, and your potential is, let's suppose, ur. Okay, so this is nothing but, so this is the kinetic and the potential energy. So m r dot square plus half m r square theta dot square plus ur. तो यहाँ पे जो है u dot can be substituted from here. So if I substitute u dot from here, this simply becomes half m r dot square plus half m r square L upon mu r square का स्क्वायर है ना, प्लस u of r. So this simply becomes half of m r dot square plus half of m L square upon, ये m नहीं होगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, ये रिड्यूस मास के टर्म्स पे ना, ये सारा म्यू के टर्म्स पे होगा, m कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ये म्यू होगा यहाँ पे, ये म्यू होगा यहाँ पे, म्यू होगा, m कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो ये होगा, ये आपका हो गया L स्क्वायर अपॉन 2 mu r square बचेगा प्लस u of r. So the total energy of any system experiencing central forces due to both the particles is given by, the total energy is simply given by E is equal to half mu r dot square plus L square upon 2 mu r square plus u of r. Now you may be wondering why I am doing all of this. It will become clearer in 2 minutes because of the analysis that I am going to show you. But are you following the discussion? The fact that energy का expression ये है, this is clear. थोड़ा ऐसा लग रहा है छूट गए. बताओ कौन सा पार्ट आपका छूट गया? यही सर, एनर्जी एनालिसिस आपने स्टार्ट करा था तो क्यों करा था ये थोड़ा सा समझ नहीं आया. आपने जब कहा ना कि एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, थोड़ा समझ. ओके, मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने जो लिखा है, इसको सॉल्व करके हम ट्रैजेक्टरी के बारे में कुछ आइडिया ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो एलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला, ये सारा एनालिसिस हम कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको याद है, हमने कुछ लेक्चर पहले जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के डिस्कशन के बाद मैंने बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व ना करके भी हम पोटेंशियल एनर्जी से भी कुछ कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हैं. डू यू रिमेंबर? पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन आपको याद है? ऑसिलेशन होता है, एसएचएम होता है, ये सारा हमने कैसे बोला था? हमने बोला था बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ऑन द एनालिसिस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. तो किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के अलग अलग अप्रोचेज होते हैं. ठीक है, आप न्यूटन सेकेंड लॉ को सॉल्व करके वहाँ से भी कुछ कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हैं, और बाकी अदर अप्रोचेस भी है. फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से कुछ चीज़ें हमने स्टडी किया था. फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी हमने कुछ चीज़ें स्टडी करी थी. रिमेंबर ना? यस सर, वो सब याद है. हाँ, वाला और अनस्टेबल वाला और इक्विलिब्रियम. हाँ, तो हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वेशन आपको ऑब्टेन करके दे दिया. तो फोर्स इक्वेशन में जो सेकेंड 2 बॉडी प्रॉब्लम था उसको मैंने 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया, एंड आई स्टॉप्ड हियर इटसेल्फ, क्योंकि सिलेबस में इससे ज़्यादा फर्दर एनालिसिस नहीं मेंशन्ड है, एंड द फर्दर एनालिसिस अ लिटिल बिट लेंथी. मैंने थर्ड ईयर के साथ आज डिस्कस किया. आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो एनालिसिस आप देख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालिसिस से हम किस तरह से ट्रैजेक्टरी को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो. राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज द एनर्जी एनालिसिस. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वैरी करता है, वहाँ से हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. फाइन. जिस तरह से हम पहले पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को स्टडी करते थे, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट फर्दर कैन वी से अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन बाय लुकिंग एट द एनर्जीज. क्लियर? यस सर. ओके, तो अगर आप टोटल एनर्जी को देखते हैं तो टोटल एनर्जी में क्या है? दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रेडियल मोशन. रेडियल मोशन समझते हो ना? रेडियल मोशन मतलब अगर पहले जो है मास यहाँ पे था, ठीक है, और मास यहाँ पे था, बाद में मास यहाँ पहुँच गया और मास यहाँ पहुँच गया,
तो ये पॉसिबल है कि मास पहले करीब था और इस डायरेक्शन में था, ये पॉसिबल है कि दोनों मास दूर चले गए, ठीक है। तो पहले आपका जो आर था वो आर बाद में जो है चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आर डॉट सिंपली टेल्स अस कि रिलेटिव डिस्टेंस कितना टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रेडियल मोशन, अंडरस्टूड? यस। दो चीज़ें हो रही है ना यहाँ पे, या तो एक तो रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वो एक हो रहा है एक चीज़, दूसरा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट हो रहा है। तो एक तो होता है आपका थीटा डॉट, थीटा डॉट से हमें मालूम चलता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है सिस्टम का, और आर डॉट से हमें मालूम चलता है कि रेडियल डिस्टेंस कैसे कम ज़्यादा हो रहा है। तो वन इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड ड्यू टू रेडियल वेलोसिटी और रेडियल मोशन, एंड द सेकेंड इज द kinetic energy that is associated, kinetic energy associated or energy associated due to rotation, energy associated due to rotation। जो भी सेंट्रल फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है दो पार्टिकल, उनका सिंपल मोशन, दो पार्टिकल जो है सेंट्रल फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के पास आए, वो लोग जो है एक दूसरे के अराउंड घूम भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच का एक तो रिलेटिव डिस्टेंस होता है आर, और दूसरा होता है जो डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो थीटा के टर्म्स में भी मोशन को हम ट्रांसवर्स मोशन कहते हैं, जो रोटेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, और रेडियल वेलोसिटी के साथ वो रेडियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सो बेसिकली जो एनर्जी एक्सप्रेशन है, इट कंटेन्स फर्स्ट टर्म इज द एनर्जी ड्यू टू द रेडियल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रेडियल मोशन, एंड द सेकेंड टर्म विच इज द एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू इज रोटेशन, ठीक है। तो अगर हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं, आई कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ R, potential energy is a function of R, the second term is also a function of R. I can combine these two quantities in what I call as U L square upon 2 mu R square plus UR. I call this as U effective. So this is known as effective potential, okay? This is defined as effective potential. क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको मालूम चल जाएगा. This is known as effective potential. ठीक है? So that means this is the energy due to rotation or some kind of a centrifugal potential energy associated with the centrifugal forces, and this is the energy due to the nature of its force. जो भी interaction हो रहा है, क्या interaction हो रहा है अभी तक हमने ये decide नहीं किया. But for any kind of a central force motion, we can finally write the total energy in terms of E is equal to half mu r dot square, which is the kinetic energy due to its radial motion, plus some kind of an effective potential energy that is simply the sum of the force potential and the potential energy due to its centrifugal forces. यहाँ तक ठीक है? I'll take an example and do some analysis. अपने मन से कैसे रिड्यूस ले आ रहे हैं, उन्होंने अपने मन से कैसे ले लिया कि वो इफेक्टिव ही होगा पोटेंशियल. It is named as effective potential and the reason it is because this is a function of R, that's it. तो हम एनालिसिस जो करेंगे R के टर्म्स पे कर सकते हैं. आपको याद है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन को स्टडी किया था, उस टाइम पे हम राइट हैंड साइड में x था या R था, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो एनर्जी का टर्म है ये वेलोसिटी टर्म है, बट दीज टू आर R डिपेंडेंट टर्म्स. तो मैंने R डिपेंडेंट टर्म को एक पर्टिकुलर टर्म बना दिया है सो दैट आई कैन स्टडी दिस व्हाट हैपेंस. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द स्पेस डिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स राइट हैंड साइड में. तो है बट इसमें L भी तो है, R डिपेंडेंट टर्म्स है बट L भी तो है. L इज अ कांस्टेंट ना, L इज अ कांस्टेंट ना. L से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी सिस्टम के लिए. L कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, L आपका कांस्टेंट है, म्यू आपका कांस्टेंट है, तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उसकी वजह से. ठीक है? ओके ओके. नाउ let us take an example and do the analysis, and then you'll realize what kind of a system we are getting. First example. Okay, so first example let me take is तो आपका FR क्या था? FR was a central force. तो आपने मुझे एग्जाम्पल किया था एफ आर का. एग्जाम्पल वाज ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिटन इन दिस फैशन. यस सर.
Yes, sir. And electrostatic force also Yes, can be sir. written in this fashion. Now, there are two situations which are possible. First, case one. Case one is that K is positive. Example क्या है? Proton proton repulsion या positive charge repulsion. अगर K पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा? K पॉजिटिव है. आपकी स्ट्रीम फंस गई है क्या? नहीं, इट्स ओके. सर ये एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा है सर, समझाना एक बार. ये ग्रेविटेशनल फोर्स Yes, sir. क्या होता है? दिस इज नथिंग बट माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. तो इसको माइनस या के अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, के बिंग नेगेटिव. यस सर, यस. या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इसको हम या वट एवर कॉन्स्टेंट इसको भी के अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं. यस सर. ठीक है. तो दो सिचुएशंस पॉसिबल है, एक जहाँ पे के पॉजिटिव है, दूसरा जहाँ पे के नेगेटिव है. के जहाँ पे पॉजिटिव है हम रिपल्शन की बात कर रहे हैं, और के जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करके क्या डिराइव कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर के पॉजिटिव है तो आपका यू आर कितना होगा? यू आर विल बी इक्वल टू के अपॉन आर. यस, potential energy will be equal to k upon r, and therefore total energy will be equal to half of mu r dot square plus u effective, where u effective. सर माइनस नहीं आएगा क्या? माइनस कैसे आएगा? u r is equal to minus f of r dr. तो ये आपका कितना हुआ? f of r कितना हुआ? k upon r square हुआ dr. तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? प्लस के अपॉन आर नहीं हो गया? प्लस कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट्स का हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी चूज द रेफरेंस सच दैट द कांस्टेंट इज 0. सो यू इफेक्टिव इज नथिंग बट एल स्क्वायर बाई 2 यू आर स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस के अपॉन आर. ठीक है. यू इफेक्टिव इज एल स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस के अपॉन आर. तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर है, यहाँ पे आपका आर है, बोथ आर पॉजिटिव. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. ठीक है. दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट. तो आपको 1 बाय आर स्क्वायर और 1 बाय आर कैसे चेंज होता है आपको मालूम है ना. y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे वेरी करता है आपको मालूम है? यस सर. हाइपरबोला कहाँ से हो गया यार? ये दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है. इस तरह से वेरी करता है ना y अपन 1 बाई एक्स स्क्वायर. यस सर. ये आपका इंसर्ट ऑन पेज कर देता हूँ मैं. ठीक है. ये पेज में आ गया. ये एक टर्म हो गया. दूसरा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कैसे वेरी करता है? हाइपरबोला. क्या? ये आपका 1 अपॉन एक्स इस तरह से वेरी करता है ना. सो इसको भी मैं इंसर्ट ऑन पेज कर देता हूँ. ठीक है. सो इन दोनों का सम क्या होगा? सो लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ सर. या सर नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा रिपीट कर दो सर. 2 मिनट पहले का सर बस. मैंने यहाँ बेसिकली मैं ये एग्जांपल देख रहा हूँ कि जब आपका सेंट्रल फोर्स में के अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में कोई फोर्स है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एनालिसिस देख रहा हूँ. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? के अपॉन आर आ जाएगा, और दूसरा ये टर्म पहले से ही है बाय डेफिनेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. ठीक है. ये एक्सप्रेशन मैंने पहले ऑब्टेन किया हुआ है. तो इसको मैं एल कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज दिस इज. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज समथिंग सिमिलर टू एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर है ना. और इसको मैं बोल सकता हूँ नहीं मैंने उल्टा कर दिया. ये के बाय आर था ना, ये के बाय आर, और ये आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर था सर. आर स्क्वायर पहले वाला आर स्क्वायर था सर. ठीक है. ठीक है. ओके.
this was L square upon 2 mu r square, something like this, and this is k upon r. तो मैं अगर एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ, let's suppose a sum of all of both of these. So if I make a potential energy diagram where right hand side में you have r and this is nothing but potential, effective potential. So this will look something like this. ठीक है, this is nothing but L square upon 2 mu r square plus k upon r. This is the potential energy diagram of this system having energy this. Yes sir. ठीक है. What is an example of such kind of a system? Example of a positive charge approaching another positive charge. जहाँ पे R basically gives the distance. ग्राफ में मिला दिया, मतलब थोड़ा सा ग्राफ ऐसा था, थोड़ा सा ग्राफ ऐसा था, आपने मिला के एक नया ग्राफ बना दिया. ऐड कर दिया ना मैंने, ऐड कर दिया this plus this plus this. ऐड करेंगे तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ना. ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं सर. बेटा क्वांटिटीज को ऐड करके नया ग्राफ बनाया. अरे यार ये पार्ट यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे इसका ये वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू, दोनों का सम हो गया ना. क्वांटिटीज को ऐड करके नहीं बना सकते ग्राफ. तो मैं फिर कैलकुलेट समझ गया ना. नहीं तो फिर मेरे को फिर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पे. अगर आप चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, बट इसी तरह का ग्राफ आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ऊंचा नीचे होगा, उससे हमारा एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी की एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे क्या हम किस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सबसे पहला एनालिसिस हम ये कर सकते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ओके, मैंने एग्जांपल लिया है वन पॉजिटिव चार्ज अप्रोचिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज. सो लेट्स सपोज कि आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. ऑलराइट, और एक पॉजिटिव चार्ज जो है दूर से अप्रोच करता है इसको. ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज जो है अप्रोच कर रहा है. ऑलराइट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है. तो लेट्स सपोज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज E1. तो इफ द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज E1, तो ये अगर E1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो पार्टिकल का क्या होगा, E1 है तो पार्टिकल जो है दूर से आएगा, वापस बाउंस बैक होके वापस चला जाएगा. देयर इज़ नो बाउंड मोशन. दे विल कम वेरी नियर टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, बट बियॉन्ड दिस दे विल गो अवे. लेट्स सपोज दिस इज R1. तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी आपका होगा समथिंग लाइक दिस. इस तरह का ट्रैजेक्टरी होगा जहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस इज R1 तक आएगा, फिर चला जाएगा दूर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ठीक है, ये पार्टिकल आएगा, पोटेंशियल को हिट करेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. E1 इज इक्वल टू UEF, मतलब जहाँ पे E1 इज इक्वल टू UEF इक्वल हो जाता है, वहाँ पे डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा. उसके बाद जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा दोबारा. मतलब पहले वो उसके करीब आ रहा है लेकिन फिर दूर जा रहा है, और वो जो पॉइंट जहाँ पे उनका डिस्टेंस जो है मिनिमम है, दैट पॉइंट इज बेसिकली गिवन बाय R1. फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में बता रहा हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके नहीं बता रहा, मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बता रहा हूँ. सो बेसिकली E1 जहाँ पे आपका E1 माइनस E1 इज बेसिकली इक्वल टू UEF, वहाँ पे एट R इज इक्वल टू R1. ठीक है सर, क्लोजेस्ट अप्रोच होगी सर, क्लोजेस्ट अप्रोच.
हाँ, दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. R1 इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अगर एक और पार्टिकल आता है, लेट्स सपोज विथ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज लेट्स सपोज E2. ठीक है, E2 इज ग्रेटर देन E1. तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हम एनर्जी डायग्राम से देख सकते हैं कि ये ज़्यादा करीब आ जाएगा पार्टिकल के. अगर E2 इज ग्रेटर देन Yes, E1 तो ये इट विल कम क्लोजर टू द पार्टिकल. इनका जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस, वो घट जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पार्टिकल का फिर सेम ही मोशन होगा कि पार्टिकल आएगा, आने के बाद फिर ये दूर चला जाएगा, बट the distance of closest approach will be lesser, which is obvious from the potential energy diagram. That means अगर पार्टिकल जो है ऐसे है, इस सर डायरेक्शन ये में आ रहा एनर्जी था. इक्वल कैसे हुई? सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई जो आपने कहा R1 पार्टिकल पे ऐसे है. R1 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कैसे हुई? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी ना सर वहाँ पे R1 पे. काइनेटिक एनर्जी नहीं, रेडियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. ये हाँ, R ये सर. डॉट स्क्वायर है. काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे एक ट्रांसलेशन एनर्जी भी है. ट्रांसलेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा, रेडियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा. यस सर, गॉट. तो रेडियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो E इज इक्वल टू यू ई एफ ऑफ होगा ना. तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर Yes, सकता हूँ R1 क्या है, R2 क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहाँ पे जो है ये पार्टिकल इस तरह से आएगा, ये पार्टिकल ऐसे आएगा, और ऐसे चला जाएगा. इसमें डेविएशन भी कम होगा. तो इसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो है ये, एंड दिस इज R2 एंड दिस इज दिस डिस्टेंस. ये R2 है. मैं एनर्जी एनालिसिस से ही R1 R2 फाइंड आउट कर सकता हूँ कि पार्टिकल कितने करीब आएगा. देखो अल्टीमेटली मीट तो कर नहीं सकता, क्योंकि जितने करीब आएगा उतना ही पोटेंशियल जो है बढ़ता जा रहा है. पोटेंशियल ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, तो 100% जीरो पे तो आ नहीं सकता. मीट, दे कैन नॉट मीट ईच अदर. लेकिन करीब आकर के दूर चला जाएगा. तो सबसे करीबी डिस्टेंस क्या है, वो R1 और R2 है. वो हमें कैसे मालूम चलेगा? E1 और E2 से मालूम चल जाएगा. तो बेसिकली हमने एनर्जी एनालिसिस से ही फाइंड आउट कर लिया ना, बाय लुकिंग एट द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. ऊपर लिखा हुआ है सर आपस में टच नहीं कर सकते सर? लिखा हुआ है. आपस में टच नहीं करेंगे यार. अरे सबएटॉमिक पार्टिकल्स टच थोड़ी ना करते. वो हम टच करते हैं, हमें लगता है कि ये टच कर रहा है, लेकिन मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को टच थोड़ी ना कर रहा है. मेरे एक हाथ के मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ टच नहीं कर रहे हैं. दे कम टू अ नियर डिस्टेंस, और जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम होता है वहीं तक पहुँच सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता. टच करना इज एन इल्यूजन दैट वी हैव. सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स वगैरह ऐसे टच नहीं करते हैं. टच करेंगे तो फिर वो कोलिजन हो जाएगा और फिर वहाँ पे पार्टिकल ब्रेक हो जाएंगी. टच करने के लिए यू हैव टू ओवरकम दैट बैरियर. आर यू फॉलोइंग द, आर यू अप्रिशिएटिंग द डिस्कशन दैट वी आर डूइंग? Yes, sir. यस. वो क्या लिखा हुआ है? क्या आपने एक रिलेशन लिखा हुआ है ना, E1 ग्रेटर देन समथिंग, क्या लिखा हुआ है या नीचे? E1 is greater than E2. Sorry. एक मिनट. No. E2 E2 is greater than E1. Sir, E2 is greater than E1. E2 is greater than E1. ठीक है. जो पार्टिकल E2 है वो सिर्फ यहाँ तक ही आ सकता है, इसके करीब नहीं आ सकता. और जो पार्टिकल E1 जो है वो यहाँ तक ही आ सकता है, इसके करीब नहीं आ सकता. और E2 जो है यहाँ तक आ सकता है, इसके करीब नहीं आ सकता. और दैट इज समथिंग एनालिसिस हम जो एनर्जी एनालिसिस से बता सकते हैं ये. एंड बाय करीब आई मीन द नियरेस्ट रेडियल डिस्टेंस. अंडरस्टूड? सर क्या हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि किस एनर्जी पे पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगा? नहीं, ट्रैजेक्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी. ट्रैजेक्ट्री के बारे में मुझे फिर फोर्स इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. आई एम नॉट डूइंग एनालिसिस ऑफ ट्रैजेक्ट्री. आई एम डूइंग कि जो भी ट्रैजेक्ट्री हो, नियरेस्ट पॉइंट इज एट R1 एंड R2 फॉर एनर्जीज E1 एंड E2. दैट ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी के एनालिसिस से हम सारा इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें मालूम कर सकते हैं. और वो कुछ चीज़ में से ये एक चीज़ है कि R1 इज़ फॉर E1, R2 is for E2, the nearest radial distance. Clear? Yes. Yes,
आप लोग 10 मिनट फिर मेरे को दे सकते हो। के इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए मैं कर देता हूँ, फिर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो डिस्कशन आधा अधूरा रह जाएगा और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। के इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए डिस्कशन सर करते हैं सर। 10-15 मिनट्स आप दे सकते हो यस मुझे, सर। यस सर। ठीक है। तो के इज इक्वल टू नेगेटिव में, के इज इक्वल टू नेगेटिव का कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है यार, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका जो एनालिसिस है और भी इंटरेस्टिंग है। आई नो आप लोग के लिए दिन ऑलमोस्ट ओवर है, बट जस्ट गिव मी 15 मिनट्स मोर, ओके। मैं उसका एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। केस 2, के इज़ नेगेटिव, के इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव सिचुएशन में एग्जाम्पल है आपका ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में ट्रैजेक्टरीज किस तरह का होगा, कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो के इज इक्वल टू नेगेटिव। सो यहाँ पे लेट्स सपोज हम लेते हैं के नेगेटिव नहीं लिखते, मैं लिखता हूँ उसको एफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, तो ऐसा सिचुएशन में के अगर नेगेटिव होगा तो मैं लिखता हूँ फोर्स इज नेगेटिव, लिख देता हूँ यहाँ पे फोर्स इज नेगेटिव, ओके। तो मैं अगर लिखता हूँ फोर्स इज नेगेटिव, तो देन आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू आर इज इक्वल टू माइनस के बाय आर होगा, माइनस के बाय आर होगा। यू इफेक्टिव होगा आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाय आर हो जाएगा, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस यू इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब जो है हाँ, तो अब जो है आपका ए एक्सप्रेशन है 1 बाय आर स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन है माइनस 1 बाय आर। तो 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आपने देख ही लिया, फिर भी मैं ऑप्टेन कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू हाँ म्यू होगा, सॉरी हाँ म्यू होगा। सो वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, इट इज समथिंग लाइक दिस, it is something like this। it is something like this, ठीक है। तो ये साइड में रखता हूँ मैं यहाँ पे, let's keep it here, keep it here। लेकिन अब मुझे देखना है कि y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स का ग्राफ होता है समथिंग लाइक दिस, ये ग्राफ है ना फॉर पॉजिटिव आर। यस सर, पॉजिटिव आर के लिए ये ग्राफ है आपका। स्केलिंग को भूल जाओ, मैं जस्ट आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। फॉरगेट द स्केलिंग, स्केलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब दोनों का सम कैसा होगा मैं बना के दिखाऊं क्या, बट वो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ दोनों का सम कैसा होगा आपका। दोनों का सम होगा इस तरह का दिखेगा आपका। अगर दिस इज यू इफेक्टिव एंड दिस इज आर, इनिशियली क्या है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो इनिशियली ये डोमिनेट करेगा, फिर धीरे धीरे ये नीचे का ग्राफ डोमिनेट करेगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का दिखेगा। It will look like this. Does it make sense? yes sir, Yes sir. This makes sense to both all of you guys? ऐसा लगेगा आपको। yes sir, दिस इज ग्राफ, दिस इज अ वेरी फेमस ग्राफ। आप जहाँ पे भी जाएंगे ना ये ग्राफ हमेशा दिखेगा। आप प्लानिटरी मोशन को स्टडी करते हैं, ये ग्राफ दिखेगा। आप क्रिस्टल लैटिस में आयंस के बीच की वाइब्रेशंस को स्टडी करेंगे, ये ग्राफ दिखेगा। आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच की फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, ये ग्राफ दिखेगा। ये जो ग्राफ है ना बहुत जगह में दिखता है। अभी राइट नाउ हम प्लानिटरी मोशन को स्टडी करते हैं और प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड कंक्लूजन्स बताते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। क्लियर? दिस इज क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so if this is your potential energy graph, let me give you a little bit of an analysis here. Okay, so let me draw it in a little bit better fashion. मैं थोड़ा better बना लेता हूँ इसको।
तो ग्रेविटी में सेंट्रल फोर्सेस की वजह से किस तरह के ट्रैजेक्टरीज पॉसिबल है, थोड़ा सा मैं आपको आंसर्स बता दूंगा बिकॉज वो ट्रैजेक्टरीज की इक्वेशंस ऑब्टेन करना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह के पॉसिबल है सिनेरियोस. सो लेट्स सपोज दिस इज़ वन, ठीक है, और क्योंकि मोशन प्लेन में है तो मैं इसको क्या है रोटेट भी कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपली दैट द मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन. ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अगर आपके पास कोई सन है और आपके पास कोई अर्थ है, इनका जो भी मोशन है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन. सन भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, लेकिन प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है. तो मैं अगर कोई एक फिक्स्ड एक्सिस मान लेता हूँ, लेट्स सपोज थीटा, तो लेट्स सपोज दिस रेफर्स टू बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज एंड दिस रेफर्स टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज. ओके, तो इससे क्या होगा, रेडियल मोशन जैसे हो रहा है, हम रेडियल मोशन को स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो ट्रैजेक्टरी है वो प्लेन पे है. यस, दिस डज नॉट इम्प्लाई नेगेटिव आर. ओके, यस, यू आर सेइंग समथिंग. एक्चुअली मेरा नेट खत्म होने वाला और मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो मैं अभी लीव कर दूं. ठीक है, और अटेंडेंस आप इस चैट में लिख दो. Okay, now this is the potential energy, effective potential energy for planetary motion. Yes, gravity मतलब planetary motion. हम gravity को एनालिस कर रहे हैं तो बेसिकली हम planetary motion की बात कर रहे हैं. So this is the effective potential energy for planetary motion. Yes, this is clear? Yes. Okay. Yes. Now, so this is the most important part, the possibilities. Okay, what are the possibilities here? सबसे क्लियरर पॉसिबिलिटी है दैट, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस यू इफेक्टिव. ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट एनर्जी इज इक्वल टू यू मिनिमम. यू मिनिमम कौन सा है, यू मिनिमम इज दिस. एनर्जी लेस देन यू मिनिमम इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. एनर्जी लेस देन यू मिनिमम बिकॉज इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल क्यों है, फिर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा ना. यस सर, वो पॉसिबल कभी है नहीं. ठीक है, एनर्जी लेस देन यू इफेक्टिव नॉट, यू मिनिमम नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द यू मिनिमम. लेट्स सपोज दिस इज E1. लेट्स सपोज दिस इज E1. तो अगर पार्टिकल जो है कि एनर्जी E1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी रेडियल डिस्टेंस हमेशा ये ही होगी. दिस इज द रेडियल डिस्टेंस. ओके, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस. तो रेडियल डिस्टेंस फॉर अ पार्टिकल हैविंग मिनिमम एनर्जी इज ऑलवेज फिक्स्ड और ऑलवेज अ कांस्टेंट. तो अगर वो पार्टिकल किसी प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है तो उसका ट्रैजेक्टरी क्या होना चाहिए, सर्कल. वेरी गुड. रेडियल डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट फॉर सर्कल. सर्कल के लिए रेडियल डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. Yes, sir. सर्कल के लिए जो है रेडियल डिस्टेंस कांस्टेंट होता है. तो आपका जो इफेक्टिव एक होगा वो होगा आपका यहाँ पे सर्कल होगा. तो जब एनर्जी किसी भी प्लानिटरी मोशन को स्टडी करने के टाइम पे मिनिमम एनर्जी पे आपका सर्कुलर ट्रैजेक्टरी होता है. दैट इज द कंक्लूजन हियर.
ना फर्दर जो कंक्लूजन है वो मैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उसके लिए मुझे इक्वेशंस के साथ डील करना पड़ेगा, बट यू कैन स्टिल अप्रिशिएट व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्दर पॉसिबिलिटीज। पहली बात, इट इज़ अ बाउंड मोशन, ठीक है, इट इज़ अ बाउंड मोशन, बाउंड मोशन। दूसरी बात, ट्रैजेक्टरी इज अ सर्कल, ठीक है। सेकेंड एनालिसिस जब E2, लेट्स सपोज E2 है आपका, E2 इज ग्रेटर देन E मिनिमम और U मिनिमम बट लेस देन 0, ओके। लेट्स सपोज आपका E2 है, आपका E2 है, लेट्स सपोज this is your E2, this is E2, okay। तो फर्स्ट यू कैन टेल दैट अगर यहाँ पे E2 है, इट्स लेस देन 0, इट्स नेगेटिव बट ग्रेटर देन U मिनिमम, सो फर्स्ट एनालिसिस दैट इज स्टिल बाउंड मोशन, यस। Yes. But can anybody guess what would be the nature of trajectory here? Elliptical, sir. Yes. If you solve the equation of force equation, it will come out that this kind of a energy is corresponding to an elliptical orbit. आपको यहाँ पे मिलेगा elliptical trajectory. This will lead to some kind of an ellipse. Third analysis is where, let's suppose E3 is equal to 0, मतलब E3 is here, E3 is equal to 0। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो can anybody guess what kind of a trajectory is possible? Parabola. Yes, it is a Sir, parabola. parabola. Parabola, very good. It is a parabola. Okay, parabola. Particle will come from infinity and go back to infinity. It is an unbound motion and it's a parabolic trajectory, parabola. And the last analysis is when E4 is, let's suppose, greater than 0. E4 is greater than 0. E4 तो आपका यहाँ पे होगा, एनी गेसेस? हाइपरबोलिक हो सकता है। Hyperbola. Very होता good. सर ये। It's a hyperbola. It's a hyperbola. It will come from infinity, go back to infinity. It's an unbound motion. It's an unbound motion. Sorry. Unbound motion. And the nature of the trajectory is a hyperbola. Okay. So, जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रैजेक्टरीज विच आर एक्चुअली पॉसिबल: circular trajectory, elliptical trajectory, parabolic trajectory and hyperbolic trajectory, and they all depend upon the energy of the configuration. Earth and sun का जो सिस्टम का एनर्जी इट इज नेगेटिव but greater than U minimum, therefore it's an elliptical Yes, sir. trajectory. जब बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई कॉमेट आता है, तो वो इन्फिनिटी से आता है, उसकी एनर्जी जो है कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा हो सकती है। इन्फिनिटी से आता है, सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है और निकल जाता है इन्फिनिट तक, ठीक है। दूर से आता है, सन के अराउंड एक चक्कर लगा के निकल जाता है। इट डज नॉट फॉल इन द सन, इट डज नॉट रिमेन स्टक टू द सन, इट जस्ट फ्लिप्स अराउंड द सन एंड गोज बैक टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये हमें बता सकता है कि एक तो सबसे पहले किस तरह का मोशन बाउंड बॉडी,
बाउंड या अनबाउंड होने के लिए एनर्जी को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होना चाहिए. यस. Yes, someone was asking something. सर अब अटेंडेंस ले लीजिए सर. क्या कह रहे हो बेटा? आपका आवाज़ टूट रहा है यार, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ.